is that we should be able to understand various components of this chapter, should be able to uh, learn and able to discuss or diffuse certain type of questions even as well. So for that, I have told you in the last lesson that topical solutions will be always very decisive. We have been discussing how to get your A stars confirmed by just following the certain skills of your preparations. और इनमें से I guess and my point of view regarding or my expertise regarding this basically subject is going to be based on these things. तो हमें बेसिकली ये देखना है कि जो भी हम टॉपिक कर रहे हैं उसके साथ उसका टॉपिकल सोल्यूशन ज़रूर करना होता है. आई हैव बीन सबमिटेड सम टॉपिकल्स, आई एम चेकिंग देम ऑन द रेगुलर बेसिस. और आपसे भी ये रिक्वेस्ट है बेटे कि अगर आप अपनी एक्सीलेंस को इंश्योर करना चाह रहे हैं इन पाकिस्तान स्टडीज़, so you should be having a continuous interaction with the topicals of all the chapters which are been under discussion during this session of yours with us. So, as I've told you, understanding of the command words, formats, all these things matters a lot. And among those things, the most important thing is कि आपको रेगुलर बेसिस के ऊपर टॉपिकल्स और पास पेपर क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना होता है. एज आई हैव टोल्ड यू, past papers solution be only possible if you have done the chapters. So topical is what is going to let us have a better experience with the past paper solutions even as well, because these topicals will help us to understand कि कैसे कैसे questions हमें किस किस topic पे आएंगे. तो आज का जो मेन एजेंडा रहेगा इन नेक्स्ट 45 to 50 minutes, I'll be solving certain questions of chapter number 4 and will be discussing them with you even as well, so that you can have excellence in chapter number 4's discussion and the different types of questions which could be given to you during your exam even as well. For instance, I'm starting from the first question which is on your display screen. I'm going to be grateful if someone is going to type into my chat box that they are able to listen me and they are able to see the topicals clearly on their display screen, so that we can continue in a proper way. So, bete, please respond back into your chat box that are you able to listen me clearly? And my display screen is yes. Thank you for your assistance. Thank you. Now let's see that what type of questions were been given in the past from chapter number 4 and how our experience with these questions can pave the way towards excellence in all these chapters. This is question number 1 in front of us for the day. And why I have chosen it, because I have always told you during the discussions that such questions are going to be regularly given to you from this topic. You will be given a map, and on that map, you are going to be required to answer that what type of forest is been grown in a specific part of the country by giving you such type of maps. So there is a question which is quite easy to identify, and the question is study figure 1, which shows a map of forest types in Pakistan. This question came in summers of 2010, even though I have written the year when they came into your exams, so that you can recall that कि how important they are going to be for your future exams even as well. तो लास्ट टाइम ये क्वेश्चन जो था बेटे, दैट वाज बीन गिवन इन समर ऑफ 2010, एंड दिस इज द ईयर व्हेन इट वाज बीन गिवन. टॉपिकल्स में ईयर्स भी गिवन है, इवन मॉडल आंसर्स आर बीन गिवन एज वेल. और ये चैप्टर वाइज क्लासिफाइड टॉपिकल्स हैं. कंप्रीहेंसिव टॉपिकल्स भी मैं आपको शेयर कर सकता हूँ, लेकिन ये बेहतर है बिकॉज इसमें आपको चैप्टर वाइज टॉपिकल सोल्यूशन, टॉपिक वाइज year when they came, or their model answers are also been given on the same page where the question is been asked. तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो इट्स क्वाइट सिंपल टू आंसर. द क्वेश्चन इज नेम द फॉरेस्ट टाइप फाउंड इन ईच ऑफ द एरिया ए, बी एंड सी. And as I have told you that chapter 1 will provide you the base for entire chapters of your geography. That is why I took 1 month to clarify your chapter number 1. तो यहाँ पर बेटे chapter number 1 and chapter number 4 both are going to assist you to answer this question. यहाँ पर question ये है, you have to identify on the map different types of forests which are been grown in different parts of Pakistan. अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर बहुत simplified way में one of the basically area is been marked as C, and this is your coastal region of Pakistan where I have my pointer right now, and you have to identify C even as well. So यहाँ पर C is going to be definitely coastal region है, mangrove is going to be the right answer. Your A is basically A and A both are part of basically northern बलूचिस्तान है ये, और यहाँ पर आपके पास
हिंदू कुश रेंज है, तो कॉनिफ्यूरियस विल बी द राइट आंसर, बिकॉज नॉर्दर्न बेसन्स ऑफ बलोचिस्तान के अंदर भी वी हैव कॉनिफ्यूरियस, बिकॉज क्वेटा इज एलिवेटेड टू more than 1000 meters of height. So coniferous is going to be grown in northern parts of Balochistan plateau, and then Hindu Kush is also having the reserves of coniferous forests. So आपका यहाँ पर आंसर आएगा A would be, यहाँ पर जब आप इसका आंसर लिखोगे तो you can see the answers here by yourself as well. The coniferous is going to be your right answer. Riverine could be the answer to the B part, because it has been shown on the track of Indus River. Indus River के ऊपर आपके पास बेला फॉरेस्ट या रिवरन फॉरेस्ट आपकी ऑप्शन ठीक रहेगी, बिकॉज रिवरन आर ऑलवेज फाउंड across the rivers and on the banks of the rivers. And C, definitely I have answered it. It's your mangrove forest. So these type of questions are going to be very common from chapter number 4. You will be given a map, and on the map you will be asked about to identify the various types of forests. Then bete, if we are going to see the second question, that is name the sea D. So definitely it is going to be Arabian Sea. It's a quite easy answer to give. And the line of latitude E. So I will teach you in the coming sessions how to identify the lines of latitude and line of longitude with the different chapters we are going to be having discussion upon. Then this variation is also going to be clear for you to answer. Let's see further questions. The question is, explain why the forest type A grows naturally in cool hilly areas. So I have told you that coniferous forests are very adaptive towards their climatic conditions, and they need basically cold temperature to grow. तो सबसे पहले तो आप ये बताओगे कि जो coniferous tree है that grows in high basically low temperatures of the north or the mountainous areas where we have basically cold temperature in comparison to the rest of Pakistan. Then the nature of this tree is basically adaptive to the climatic conditions of the cold areas, as it is having conical shape. So snow falling जो है that it can now damage the coniferous tree. Then they have leathery texture of leaves, which protects them from cold winds of the north or the mountainous areas. Then they have springy leaves even as well. Whenever the snow falls upon them, they bend down and the snow slips from their leaves. So they are been by nature designed in a way by Allah Almighty that they can resist the एक्सट्रीम टेम्परेचर ऑफ द नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान. तो अगर हम इसका यहाँ पे आइडियल आंसर देखें जो मैंने यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं ब्लॉक्स के अंदर, तो यहाँ पे बेटे हम बड़ा क्लियरली देख सकते हैं कि क्वेश्चन है एक्सप्लेन वाई द फॉरेस्ट टाइप ए. फॉरेस्ट टाइप ए यहाँ पे हमने आइडेंटिफाई किया था, दैट वाज कॉनिफ्यूरियस. कॉनिफ्यूरियस जो ट्री है दैट कुड बी sustainable to plant in the northern parts or the cool areas because of these properties. अब ये देख रहे हो कि ऑप्शन में the same things are been given as part of your answer scheme as well. They can tolerate cold, wind, they tolerate poor thin dry soil, they shed snow with slopy branches or springy branches, they reduce water loss, they absorb water from melting snow, they save energy with evergreen leaves, they have leathery texture. आप कोई भी तीन प्रॉपर्टीज लिख के तो तीन में से तीन मार्क्स अपने स्कोर कर सकते हो, लेकिन फिर सबसे पहले बेटे अंडरलाइन द कमांड वर्ड इन ज्योग्राफी, देन आंसर इट. यहाँ पर यू आर नॉट सपोज टू पॉइंट आउट द इंफॉर्मेशन, बट यू आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन 3 पॉइंट्स एट लीस्ट. तो आपने जो भी आर्ग्यूमेंट प्लेस करना है इस क्वेश्चन के अंदर, आपने उसके लिए थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करनी है. ये बुलेट्स आर नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन आंसरिंग इट, बिकॉज ये बुलेट्स कहाँ यूज होंगी, जहां पर स्टेट लिखा होगा, इन लिस्ट लिखा होगा, या आपको मेंशन लिखा होगा. जब आपके पास एक्सप्लेन लिखा हुआ है तो यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द कमांड वर्ड एंड देन यू हैव टू मैन्युफैक्चर योर आंसर. So if 5 lines are given, your answer must be accommodating these lines. At least 7 to 8 lines must be written in such a type of a question. आपने थोड़ा सा explanatory answer देना है. So that is going to be the better way to answer such a question. There is a question which is out of the box. It is not a common question, and it can cause trouble to those students who have weak analytical abilities. तो यहाँ पर क्वेश्चन जो है बेटे, द थर्ड क्वेश्चन ऑफ आवर टुडेज सेशन इज व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट दैट फॉरेस्ट्स बाय द कोस्ट आर प्रोटेक्टेड. So you are just going to tell that what are the functions of mangroves. First of all, we have studied that mangroves works as nurseries for baby fishes
for shrimps, for crabs, and for snakes or birds even as well. So, if we are going to cultivate and if we are going to protect our coastal forests, the breeding grounds for such species is always going to be facilitating their existence. तो आप बताओगे इसके पहले आर्गुमेंट में चार आर्गुमेंट देने हैं, वाई इज इट, या दो भी आर्गुमेंट देकर उनको प्रॉपरली एक्सप्लेन कर दोगे तो 3 से 4 नंबर मिल जाएंगे विद एग्जाम्पल. अगर आप चार सेपरेट पॉइंट्स भी दे दोगे, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू लेट यू हैव 4 आउट ऑफ 4. तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है. क्वेश्चन ये कि कोस्ट के ऊपर जो फॉरेस्ट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना क्यों जरूरी है. तो सबसे पहले तो बेटे आप बताओगे कि जो कोस्टल फॉरेस्ट होते हैं दे आर मैंग्रोव्स, और मैंग्रोव्स प्रोटेक्ट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि दे आर द नेचुरल हैबिटेट टू योर स्नेक्स, श्रिम्स, फिश एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सी क्रिएचर्स. दूसरी चीज़ ये है बेटे कि कोस्टल रीजन्स के ऊपर अगर आप प्लांटेशंस को प्रिजर्व करते हो तो यू आर गोइंग टू स्टॉप बेसिकली कोस्टल इरोजन. जो कोस्टल रीजन्स के ऊपर मट्टी होती है दैट श्रिंक्स डाउन विद द पैसेज ऑफ टाइम, अर्थक्वेक्स की वजह से या ड्राइनेस की वजह से उनमें क्रैक्स आ जाते हैं. जब क्रैक्स आते हैं अर्थक्वेक्स की वजह से मोस्टली आते हैं, तो वो अगर ट्रीज और मैंग्रोव्स की जो रूट्स हैं वो वहाँ पर नहीं है, तो वो जो कोस्टल इरोजन है वो मट्टी जो है वो पानी में मिक्स होती जाएगी और वो दरियाई कटाव के अंदर या समुद्री कटाव के अंदर ज़मीन आती जाएगी और समंदर जो है वो अपनी एरिया को इंक्रीज करता जाएगा. तो कोस्टल रीजन्स के ऊपर मैंग्रोव लगाना इसलिए ज़रूरी है कि आप कोस्टल इरोजन से बच सकते हैं. तो आप कोस्टल इरोजन का नाम लेंगे. थर्ड, दे आर गोइंग टू फिल्टर आउट वाटर एंड पोल्यूशन एंड दे विल रिस्ट्रिक्ट गार्बेज टू गो इनटू द सी. दे विल ब्लॉक द गार्बेज. अगर मैंग्रोव्स लगे हुए हैं तो जो आपके शॉपर बैग्स हैं, जो डिफरेंट आपका वेस्ट मटेरियल है, प्लास्टिक मटेरियल है, बॉटल्स हैं, वो इनमें नेचुरली स्टक हो जाती हैं और वो वाटर पोल्यूशन से प्रिजर्व करती हैं. फोर्थ, अंडर द साइक्लोन्स, अंडर द सी स्टॉर्म्स, ये फॉरेस्ट जो हैं उनकी इंटेंसिटी को रोकते हैं, विंड्स की इंटेंसिटी को रोकते हैं, जिससे जो कोस्ट के ऊपर डिस्ट्रक्शन है वो कम से कम होती है. फिर ये फिशिंग कम्युनिटी के लिए बड़े बेनिफिट्स रखते हैं कोस्टल जो फॉरेस्ट होते हैं, क्योंकि जो फिशिंग कम्युनिटी है उसको डीप वाटर में जाकर फिशिंग नहीं करनी पड़ती, क्योंकि मैंग्रोव्स की बेड्स में से या मैंग्रोव की रूट्स में से ही उनको फिश कैच मिल जाती है अच्छी. क्रैब्स, श्रिम्स और लॉबस्टर्स, इस तरह की चीज़ें वो जो हैं वो कोस्टल रीजन से ही कैच कर सकते हैं. उनको डीप वाटर पे जंप इन करने की या स्विम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. तो देर आर लाइक डिफरेंट डिफरेंट बेनिफिट्स ऑफ ग्रोइंग ट्रीज ऑन फॉरेस्ट कोस्टल रीजन्स. यहाँ पे अगर आप इसका आंसर देखोगे तो यहाँ पे देखो सबसे पहले ब्रीडिंग ग्राउंड्स फॉर फिश. ठीक है, मैक्सिमम 2 मार्क्स फॉर फिश. आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हो. जैसे मैंने आपको बताया कि इस तरह के क्वेश्चन में आपको जब वाई इज इट इम्पॉर्टेंट दैट फॉरेस्ट ऑन द कोस्ट आर प्रोटेक्टेड, तो जब वाई कमांड वर्ड है तो दो रीजंस को मेंशन करके आप एक्सप्लेन कर सकते हो. ये हिस्ट्री में भी यही होगा, ज्योग्राफी में भी यही होगा. हिस्ट्री में ज़ाहिर है 3 पैराग्राफ लिखने होते हैं वाई में, लेकिन यहाँ पर अगर आप 2 पैराग्राफ भी लिख देते हो और उनको एक्सप्लेन कर देते हो तो यू विल बी गेटिंग 4 आउट ऑफ 4. और ये क्या मेंशन करोगे आप कि जो ब्रीडिंग ग्राउंड है वो फिश के लिए होता है, क्योंकि जो बेबी फिश है दैट टेक्स रिफ्यूज इन द रूट्स ऑफ मैंग्रोव्स and they can protect themselves from the large fishes because large fishes will eat them up. तो अगर हम मैंग्रोव लगा रहे हैं तो that is going to be the perfect combination of saving their existence and letting them to flourish even as well. फिर बेटे आप सिंपल सा बता सकते हो शेल्टर फ्रॉम स्टॉर्म्स, साइक्लोन्स, हाई टाइड्स एंड फ्लडिंग. कोस्टल जो आपके पास फॉरेस्ट होते हैं दे reduce the intensity of storms, cyclones, high tides, and flooding even as well. So this could be the benefit. I have discussed it in my earlier part of my answer. Third, bete, prevent coastal erosion. That is a good answer to present to your examiner. उसके बाद आप इसका सिंपल सा ये बता सकते हो कि फिशिंग कम्युनिटी के लिए भी असिस्ट करते हैं मैंग्रोव्स, क्योंकि फिश जो है वो नियर बाय कोस्ट उनको मिल जाती है, क्योंकि मैंग्रोव की जो रूट्स हैं उनके अंदर फिश अपने आप को प्रोटेक्टेड रखती है फ्रॉम द लार्ज सी क्रिएचर्स. तो यहाँ पर भी आपको फिशिंग इंडस्ट्री को भी बेनिफिट हो सकता है. दिस इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन ऑनेस्टली स्पीकिंग. और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बेटे. दिस क्वेश्चन इज बिन आस्क्ड इन अ 6 मार्कर क्वेश्चन इवन एज वेल, और इस पे मैं आपको ज़रूर जो है वो इन डेप्थ डिस्कशन प्रोवाइड करना चाहूँगा. जैसे देखिए, एक्सप्लेन द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डेवलपिंग मोर इरिगेटेड प्लांटेशंस ऑफ ट्रीज लोअर लैंड एरियाज ऑफ पंजाब एंड सिंध. यहाँ पर ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपके लिए टेक्निकल होगा. एक्सप्लेन द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. तो पहले मैं क्या करूँगा,
आई विल बी हाईलाइटिंग द कमांड वर्ड्स, और इसमें एडवांटेजेस को हाईलाइट करूंगा, डिसएडवांटेजेस को हाईलाइट करूंगा, इरिगेटेड प्लांटेशंस को हाईलाइट करूंगा। इरिगेटेड प्लांटेशंस क्या होती हैं? जो मैन मेड प्लांटेशंस होती हैं। मैंने आपको ये क्लास में बताया था। इरिगेटेड प्लांटेशंस क्या है? सिंपली दिस इज द एग्जांपल ऑफ इरिगेटेड प्लांटेशंस। आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पे आ रहा होगा, ये डिस्प्ले स्क्रीन पे आपको एक क्वेश्चन आया था रिसेंटली जिसमें ये पिक्चर दी गई थी। इस पिक्चर में पूछा गया था कि हाउ यू कैन जस्टिफाई दैट दिस इज अ इरिगेटेड प्लांटेशंस। आप कैसे बता सकते हो इस पिक्चर से कि ये इरिगेटेड प्लांटेशंस हैं? तो सिंपल सी बात है कि जो मैन मेड फॉरेस्ट होते हैं उनके अंदर एक पैटर्न होता है। आप देख रहे हो कि एक डिस्टेंस हुआ है, हर ट्री के दरमियान एक स्पेसिफिक डिस्टेंस है। दूसरा, पानी कैनाल के थ्रू ट्री को प्रोवाइड किया जा रहा है, तो ये मैन मेड की एग्जांपल है, क्योंकि नेचुरल वेजिटेशन में रेनफॉल जो होती है वो बेसिकली सोर्स ऑफ इरिगेशन होती है फॉरेस्ट के लिए, और वहां पर मिक्स्ड या क्लस्टर में ट्रीज होते हैं। इस तरह सिमिट्री में ट्रीज प्लांट नहीं हुए होते। ये इरिगेटेड प्लांटेशंस हैं। इनके इनके पैटर्न से नजर आ रहा है हमें कि ये एक सीक्वेंस में ऑर्गेनाइज्ड वे में प्लांट हैं, और इनके साथ एक वाटर बॉडी भी है जो इनको पानी प्रोवाइड कर रही है। तो आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकली हर्ट करेगा अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी वीक है इरिगेटेड प्लांटेशंस में और नेचुरल वेजिटेशन में। वो क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्लेन द एडवांटेजेस। आप बताओगे कि लो लैंड एरियाज ऑफ पंजाब एंड सिंध में एडवांटेजेस ये होंगे कि सबसे पॉल्यूट पॉपुलेशन के कॉन्टेक्स्ट में पंजाब और सिंध पाकिस्तान का सबसे पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो पंजाब और सिंध के अंदर है। पंजाब और सिंध में अगर आप प्लांटेशंस लगाते हो तो इन्वायरमेंटल चैलेंजेस जो हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे एरियाज के अंदर। यहाँ पे पंजाब और सिंध की जो नेचुरल वेजिटेशन है उसके एडवांटेजेस पूछ रहे हैं पहले वो, फिर आप इसके डिसएडवांटेजेस बताओगे। एडवांटेज नंबर टू होगा कि यहाँ की जो लोकल इंडस्ट्री है, टिम्बर इंडस्ट्री, जैसे फर्नीचर मेकिंग इंडस्ट्री है, स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है पंजाब में और सिंध में, तो उनको रॉ मटेरियल चीप मिलेगा अगर हम इरिगेटेड प्लांटेशंस यहाँ पर करेंगे। तो दो मैंने बेनिफिट्स बता दिए, इनको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। मैंने ये बता दिया कि पहला तो यहाँ की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है पाकिस्तान में, पंजाब में 50% प्लस है, सिंध में 23% प्लस है। तो जो सबसे मोस्ट पॉपुलेशन बेस्ड और डेंस्ड एरियाज हैं पाकिस्तान के, अगर उनमें हम इरिगेटेड प्लांटेशंस करेंगे तो वहाँ पर एयर पोल्यूशन और जो आपके इन्वायरमेंटल चैलेंजेस हैं उनको रिड्यूस करने में हमें हेल्प मिलेंगी थ्रू इरिगेटेड प्लांटेशंस। फिर दूसरा आप एडवांटेज क्या लिखोगे कि यहाँ पर हमारे पाकिस्तान के अंदर मोस्टली जो स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, गुड्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, या हमारे पास जो फर्नीचर की डिमांड है, या जो डिफरेंट हमारे पास वुड के जो बेसिकली कंज्यूमर्स हैं, टिम्बर के कंज्यूमर्स हैं, उनकी सबसे ज़्यादा यहाँ पर प्रेजेंस है पंजाब में और सिंध में। इंडस्ट्री अगर देखो, सियालकोट के बारे में आप बता दोगे, हैदराबाद कराची के बारे में बता दोगे कि ये सारे एरियाज़ जो हैं ये पंजाब सिंध में है। और यहाँ पर जो मोस्टली इंडस्ट्री है, फर्नीचर मेकिंग इंडस्ट्री, चनियोट पंजाब का एक शहर है, वो फेमस है फर्नीचर बनाने के लिए। उसके बाद सियालकोट स्पोर्ट्स के लिए फेमस है। तो उनके लिए चीप रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी जो है वो इसका एडवांटेज हो जाएगा। डिसएडवांटेज बेटा ये होगा कि इरिगेटेड प्लांटेशंस लगाने का आपके पास एग्रीकल्चरल लैंड्स रिड्यूस हो जाएंगी, क्योंकि ये सबसे पॉपुलेशन बेस्ड हाईली डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज हैं। तो अगर यहाँ पर हम ट्रीज प्लांट करेंगे, इरिगेटेड प्लांटेशंस करेंगे, तो एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन नहीं कर पाएंगे और फूड सप्लाईज के अंदर हमें चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर एग्रीकल्चर नहीं है तो ज़ाहिर है फूड सप्लाईज भी नहीं है। तो अगर हम ज़मीन को दरख्तों को में कन्वर्ट कर देंगे तो एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन जो है वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं रहेगी। डिसएडवांटेज ये होगा कि जो हाउसिंग्स हैं, जो यहाँ की बढ़ती हुई पॉपुलेशन है, उनको सेटलमेंट्स प्रोवाइड करने में चैलेंजेस आएंगे। तो ये आप दो चैलेंजेस और दो एडवांटेजेस लिखोगे। और इरिगेटेड प्लांटेशन का आपको पता होना चाहिए। मैं सिंपली आपको बता दूं कि इरिगेटेड प्लांटेशन क्या होती है, जो बेसिकली मैन मेड प्लांटेशन होती हैं, जिनमें एक सीक्वेंस होता है, एक प्रॉपर पैटर्न होता है प्लांटेशन का, दैट इज सिंपली कॉल्ड एज इरिगेटेड प्लांटेशंस। इसके साथ साथ बेटे ये क्वेश्चन मैंने आपसे बार बार आपसे रिक्वेस्ट की थी कि चैप्टर 4 में इन तरह के क्वेश्चंस पे स्पेशली फोकस कीजिएगा। आपको ये देखें यहाँ पर एक टॉपिकल में क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि स्टडी फोटोग्राफ ए, बी एंड सी, तीन फोटोग्राफ्स दी हुई हैं, दो फोटोग्राफ्स ये हैं और तीसरी फोटोग्राफ यहाँ पे है। वो कह रहा है नेम द टाइप ऑफ फॉरेस्ट ए, बी एंड सी, लोकेट
each type of forest by writing the correct letter in each of the बॉक्सेस गिवन बिलो। ए बी और सी पे हमने ये फोटोज को देख के जज करना है कि यहाँ पे कौन से ट्रीज प्लांट हुए हुए हैं। तो अगर हम यहाँ देखें तो ये अल्पाइन है। मुझे कैसे पता चला अल्पाइन है? इनकी हाइट से। मैंने हाइट देखी, अगर हाइट कम है तो कॉनिफ्यूरस है, अगर हाइट लंबी है और माउंटेनियस एरिया है ये अल्पाइन ट्री है। मैं यहाँ पे लिखूंगा अल्पाइन एंड माई वन मार्क इज गोइंग टू बी गिवन टू मी। सी में मैं लिखूंगा ट्रॉपिकल स्क्रब फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल स्क्रब फॉरेस्ट लिखूंगा तो माय आंसर इज गोइंग टू बी राइट इन सी। बी में आई एम जस्ट गोइंग टू राइट रिवर एंड फॉरेस्ट एंड आई एम गोइंग टू गेट द मार्क्स फॉर दिस। ठीक है, यहाँ पर दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस, अगर वो सी है तो मैंग्रोव लिखूंगा, अगर रिवर है तो फिर वहां पे मैं रिवर लिखूंगा, तो आई बी गेटिंग माई मार्क्स फॉर दिस क्वेश्चंस। फिर एक क्वेश्चन आ गया, डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ द फॉरेस्ट शोन फोटोग्राफ सी। अब वो कह रहा है कि इसकी डिस्क्रिप्शन दो। इस जो है ना वो बेसिकली ट्री टाइप की डिस्क्रिप्शन दो। तो कल मैंने आपको लिखवाई थी, डेंस लीफ स्ट्रक्चर होता है इनका, 6 to 8 मीटर्स इनकी हाइट होती है। दे आर एवरग्रीन ट्रीज, मोस्टली थॉर्न के पास कांटे होते हैं, प्रोटेक्ट देम सेल्व्स। ये हाई रेनफॉल एरियाज में ग्रो करते हैं, मॉडरेट टेम्परेचर में रहते हैं। ये आप इनके फीचर्स लिखोगे, आपका ये क्वेश्चन भी आंसर हो जाएगा टॉपिकल का। डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ द फॉरेस्ट शोन इन फोटोग्राफ सी। every बेटे जो पॉइंट वी हैव डिस्कस्ड दे विल हेल्प यू टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स को फॉलो करो। अगर असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स किए होंगे तो आपके लिए कोई क्वेश्चन इम्पॉसिबल नहीं रहेगा। अगर आपने वो मिस किए होंगे तो डेफिनेटली यू विल बी फेसिंग प्रॉब्लम। ठीक है, तो कोशिश आपने बेटे करनी है कि यस, कोशिश आपने ये करनी है कि यू आर नॉट गोइंग टू मिस एनी ऑफ द असेसमेंट ऑब्जेक्टिव, एंड दैट इज द सिंपल एंड फाइनेस्ट वे टू गेट योर मार्क्स डन। अब ये देखो, जैसे असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स क्या थे चैप्टर 4 के, दे आर बिन गिवन हेयर। आप जब तैयारी करने बैठो तो ये चेक कर लो कि मेरा कोई असेसमेंट ऑब्जेक्टिव रहता तो नहीं है। जैसे देखें, अंडरस्टैंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट एंड आइडेंटिफाई ऑन अ मैप देयर मेन लोकेशन। हमने देखा पाइन क्या है, हमने देखा लोकेशंस क्या हैं, मैंग्रोव क्या हैं, ये हमने पहला असेसमेंट ऑब्जेक्टिव मैंने आपको करवाया क्लास में। अंडरस्टैंड द फिजिकल फैक्टर्स हमने किए, सॉइल, एल्टीट्यूड, टेम्परेचर और रेनफॉल, दीज आर द 4 फिजिकल फैक्टर्स। कंट्रोल द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट फॉरेस्ट एंड द ह्यूमन फैक्टर्स विच हैव रिड्यूस्ड देयर एक्सटेंट, कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन हमने यहाँ पे बताने थे। ठीक है, दो मेरे असेसमेंट ऑब्जेक्टिव क्लियर हैं, आई नो द आंसर्स, आई विल मार्क माई सेल्फ गुड इन दीज 2 पॉइंट्स। देन अंडरस्टैंड द रीजंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ प्लांटेशंस इन द इंडस प्लेन। जैसे मैंने अभी आपको 6 मार्क्स का क्वेश्चन करवाया है कि व्हाई वी नीड प्लांटेशंस इन इंडस प्लेन्स, क्योंकि ये सबसे पॉपुलेटेड एरिया है, यहाँ की इंडस्ट्रियल डिमांड है और ये इन्वायरमेंटल कॉन्टेक्स्ट में सबसे थ्रेटनिंग फेज में है। यहाँ के जो शहर हैं वो AQI इंडेक्स में सबसे पोल्यूटेड शहर हैं पाकिस्तान के, फैसलाबाद, लाहौर, मुल्तान, गुजरांवाला, ये सारे शहर वो हैं जो AQI इंडेक्स में टॉप 20 में आते हैं पोल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में, तो इसलिए यहाँ पर भी प्लांटेशन जरूरी हैं। उसके बाद बेटे अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ फॉरेस्ट्स, इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट मैंने आपको करवाया था, ये वही असेसमेंट ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद एक्सप्लेन इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन सच एज सॉइल इरोजन, सिल्टिंग एंड फ्लडिंग। Silting will be done in your chapter number 5 minerals as well, chapter 3 as well। तो silting आपका वहां से बहुत अच्छे से कंफर्म हो जाएगा। Evaluate possible solutions to the problem caused by deforestation। क्या solutions हो सकते हैं? We have done this even as well। So all these assessment objectives are been clear in the recent week we have been discussing this topic। इसकी बेस पे देखिए एक और क्वेश्चन निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, लेट सपोज स्टेट इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन इन द माउंटेनियस एरियाज। तो आपको पिक्चर के कॉन्टेक्स्ट में भी पता होना चाहिए कि माउंटेनियस एरियाज के कॉजेज डिफॉरेस्टेशन के डिफरेंट होते हैं, प्लेन एरियाज में डिफरेंट होते हैं, प्लेटूज में डिफरेंट होते हैं। बलोचिस्तान के अंदर माइनिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है डिफॉरेस्टेशन का, बलोचिस्तान के अंदर ओवरग्रेजिंग बहुत बड़ा फैक्टर है, लेकिन पंजाब में माइनिंग बहुत लिमिटेड है। तो पंजाब में एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन जो है दैट इज द मेन कॉज। तो आपने एरिया वाइज याद रखने हैं ताकि यू कैन गेट 100% मार्क्स इन दिस चैप्टर बाय आंसरिंग सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अब आगे वो कह रहे हैं एक्सप्लेन हाउ वन ऑफ दीज कुड बी कंट्रोल्ड। सॉल्यूशंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन अगर आपने किए हुए हैं, टेरेस फार्मिंग कर दे माउंटेन्स के ऊपर,
और वहाँ पर जो गिलगित रिवर है आप उसकी एग्जांपल दो, स्वात रिवर की एग्जांपल दो, आप नीलम रिवर कश्मीर की एग्जांपल दो कि वहाँ पर हम रिवरन फॉरेस्ट लगा के इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम माउंटेनियस एरियाज में डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं तो एफॉरेस्टेशन करें पैरेलल, तो आपका ये मसला हल हो जाएगा। अगर आप 4 ट्री काट रहे हो और 4 प्लांट कर रहे हो तो दैट वुड बी कंप्लीमेंटिंग द सेम थिंग। तो आप इसके सोल्यूशन में ये लिख दोगे एंड यू विल बी गेटिंग 4। जब बेटे एक्सप्लेन लिखा हो तो 2 कम से कम पैराग्राफ बनाने होते हैं, ठीक है। कमांड वर्ड एक्सप्लेन का मतलब है कि 2 पैराग्राफ कम से कम बना के आप उसका आंसर लिखोगे और दोनों पैराग्राफ में 2 डिफरेंट रीजंस बताओगे। तो फिर आपके 2-2 नंबर मिलेंगे आपको एक चीज के। एक पैराग्राफ का 2 नंबर मिलेंगे, दूसरे पैराग्राफ के 2 नंबर मिलेंगे। तो आपका मार्किंग क्राइटेरिया इस तरह से होता है एक्सप्लेन कमांड वर्ड का। एक्सप्लेन भी कमांड वर्ड है, इसकी मार्किंग के लिए आपको ये कमांड फॉलो करनी होती है। 2 पैराग्राफ बना के लिखें, एग्जाम्पल दे दें एक में, ज़्यादा बेहतर है। 4 में से 4 नंबर आपके आ जाएंगे, ठीक है। अब आगे देखता हूँ मैं कुछ क्वेश्चंस तो बहुत से हैं इसलिए मैं जल्दी से इनको बाईपास भी कर रहा हूँ ताकि हम इन सबको डिस्कस कर सकें 45 to 50 मिनट्स में। फिर मैं आपके क्वेश्चन आंसर्स लेता हूँ और अगर कोई क्वेरी रह गई तो डेफिनेटली आई विल बी आंसरिंग इट, जो कि इस चैप्टर के रिलेटेड है। अब ये क्वेश्चन फिर उसी नेचर का आ गया। यहाँ पर आपको क्या कह रहा है, स्टडी फिगर 7 मैप ऑफ डिफॉरेस्टेशन इन पाकिस्तान। अब वो कह रहा है कि इन एरियाज में जहां पर डिफॉरेस्टेशन हो रही है इनका लेबल करें कि ये कौन कौन से एरियाज हैं। ये खरान डेजर्ट है, सी पे वी हैव खरान, बी पे वी हैव वजीरिस्तान हिल्स, वेस्टर्न माउंटेन्स के अंदर वजीरिस्तान हिल्स है। ये जो है ए, दिस इज योर नॉर्दर्न बेसन्स ऑफ बलूचिस्तान, ठीक है। तो नॉर्दर्न बेसन्स ऑफ बलूचिस्तान आपका खरान डेजर्ट, वजीरिस्तान, 3 एरियाज हैं जहां पर बहुत ज्यादा डिफॉरेस्टेशन हो रही है। अब वो कह रहा है नेम द एरियाज ऑफ डिफॉरेस्टेशन ए एंड बी। यहाँ पे आप लिखोगे खारान डेजर्ट ए, बी में आप लिखोगे वजीरिस्तान। अब इसी से लिंक्ड वो क्वेश्चन कह रहा होगा आपको स्टेट 3 रीजंस व्हाई डिफॉरेस्टेशन अकर इन वन ऑफ द एरिया शोन। ये खरान डेजर्ट उसने चूज किया और उसने बताया कि यहाँ पर हम क्यों डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, क्योंकि खरान के अंदर जो है वो ओवर ग्रेजिंग हो रही है एनिमल्स की, माइनिंग एक्टिविटीज़ हो रही हैं, फ्यूल वुड नहीं है वहाँ के लोगों के पास, गैस नहीं है तो फ्यूल वुड के लिए वो यूज़ कर रहे हैं। फिर वो जो इसके अंदर खरान डेजर्ट में माइनिंग और एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल या गैस इसके प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी वजह से डिफॉरेस्टेशन की जा रही है। तो दैट इज़ द मेन इशू ऑफ दैट एरिया। इसमें बेटे ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट था, 6 मार्क्स का आया था। आई वॉज टीचिंग अ बैच व्हेन दिस क्वेश्चन वॉज बिन गिवन। स्टेट एंड एक्सप्लेन 3 इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन इन द माउंटेनियस एरियाज। यहाँ पे पहले आप इफेक्ट लिखोगे, फिर आप लिखोगे एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट इफेक्ट। इफेक्ट जैसे माउंटेनियस एरियाज में मैं लिखता हूँ लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ, एक्सप्लेनेशन में क्या लिखूंगा कि इफ ट्रीज आर गोइंग टू बी कट अप, forests are going to cut up, they will snatch the habitats of the wildlife and through human and animal interaction they will be killed. सेकेंड लिखूंगा कि सॉइल इरोजन एंड लैंड स्लाइडिंग, व्हेन द अर्थक्वेक्स विल बी फेस्ड बाय द माउंटेनियस एरियाज दे विल सी a rapid landsliding and soil erosion cases in their place. That would be the explanation of that point. It's a very easy question to explain and you can answer it if you have learned causes of deforestation and why we can like why should we be controlling the deforestation। अगर आपने पॉइंट्स किए हुए हैं तो ये आंसर आपके लिए क्वाइट गेटेबल है। उसके बाद देखते हैं जी, explain how forests can be source of income for the people of the rural areas। गांव के लोग जो हैं वो फॉरेस्ट से इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं। दे कैन मेक क्रिकेट बैट्स, हैंडमेड क्रिकेट बैट्स, दे कैन मेक कार्ट्स, दे कैन मेक बोट्स एंड दे कैन सेल देम फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू आउट ऑफ द फॉरेस्ट। फिर सेकंड कैसे वो कर सकते हैं, 2 पैराग्राफ देने हैं, एक्सप्लेन कमांड वर्ड है तो 2 पैराग्राफ में आंसर लिखोगे। तो पहले में मैंने लिख दिया कि दे कैन मेक डिफरेंट कमोडिटीज फ्रॉम द वुड एंड दे कैन सेल इट टू जनरेट रेवेन्यू फॉर देम। जैसे क्रिकेट बैट्स की एग्जांपल दूंगा और बोट्स की एग्जांपल दूंगा, कार्ट्स बना के वो उस पर वेजिटेबल्स सेल कर सकते हैं, फ्रूट्स सेल कर सकते हैं। आपने देखा है कि लाहौर में हर जगह कार्ट्स हैं, छोटी छोटी गलियों में भी कार्ट्स पे जो लोग हैं वो चीज़ें सेल कर रहे होते हैं, फ्रूट सेल कर रहे होते हैं, सब्जी सेल कर रहे होते हैं। आपके गली मोहल्ले में भी अक्सर आप देखते हो कार्ट्स के ऊपर, बाजारों में भी कार्ट्स पे लोग बेच रहे होते हैं चीज़ें। तो दे आर बीन मेड आउट ऑफ वुड। तो आप ये बता सकते हो कि वो इस तरह से सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं। दूसरा वे ये है कि दे कैन कट द ट्रीज एंड दे कैन सेल इट एज अ सोर्स ऑफ फ्यूल वुड, लेकिन उसके लिए एफॉरेस्टेशन इज मस्ट, पैरेलल एफॉरेस्टेशन भी होनी चाहिए।
तो फ्यूल वुड के कॉन्टेक्स्ट में वो सेल कर सकते हैं। देखते हैं कि एग्जामिनर के कॉन्टेक्स्ट में क्या आंसर हो सकते थे कि फायरवुड, चारकोल वगैरह बना के बेच सकते हैं उसकी। रॉ टिम्बर फॉर कॉटेज स्मॉल स्केल क्राफ्ट इंडस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट बना सकते हैं, डेकोरेशन पीसेस बना सकते हैं वुड से, और डिफरेंट किस्म की टेबल्स बना सकते हैं, चेयर्स बना सकते हैं डोमेस्टिक लेवल पे हैंडमेड कॉटेज इंडस्ट्री के अंदर, और वो सेल कर सकते हैं ना। ये बड़ा इजी सा आंसर है कि लोग, गांव के लोग कैसे जंगलों से जो है वो कैसे कमा सकते हैं। उसके बाद बेटे ये देखिए, ये क्वेश्चन है नेम द टाइप ऑफ फॉरेस्ट शोन। तो ये कॉनिफ्यूरियस ट्री, क्यों? इसकी हाइट बता रही है। अगर आप इमेज को गौर से देखोगे तो इसकी जो हाइट है, अक्सर स्टूडेंट्स ये करते हैं कि वो स्केल लेके जाते हैं, प्लास्टिक का स्केल मिलता है जिसके अंदर मैग्नीफाइंग ग्लास दिया होता है एक एज के ऊपर। ज्योग्राफी के लिए 90% स्टूडेंट्स वो यूज करते हैं। उस मैग्नीफाइंग ग्लास से वो गौर से देखते हैं इमेज को। आपने अक्सर देखा होगा कि प्लास्टिक के स्केल्स के अंदर कॉर्नर पे बबल सा बना होता है, वो बबल नहीं होता, या उसका एक्चुअल पर्पस क्या होता है, वो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है बेटे। वो प्लास्टिक का स्केल यूज करना अपने एग्जाम में, वो वाला यूज करना जिसके अंदर मैग्नीफाइंग ग्लास हो। मैग्नीफाइंग ग्लास से आपने इमेज को फोकस के साथ देखना है, तो आपको जरा जूम हुआ हुआ इमेज नजर आएगा। तो उसमें आप देखोगे तो आपको इन ट्रीज की हाइट से नजर आ रहा है कि ये अल्पाइन नहीं है, ये कॉनिफ्यूरियस ट्रीज हैं। कॉनिफ्यूरियस की हाइट कम होती है, अल्पाइन की टॉलर होती है। तो ये जो ट्रीज नजर आ रहे हैं हमें डिस्टेंस पे माउंटेन्स पे, ये हमें कॉनिफ्यूरियस नजर आ रहे हैं। तो हम यहाँ पे सिंपल सा लिख देंगे कॉनिफ्यूरियस, तो हमारा आंसर ठीक हो जाएगा। सजेस्ट 3 reasons वाई दीज फॉरेस्ट आर बीइंग कट डाउन। अगेन द सेम क्वेश्चन। एक्सप्लेन द इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन। अगेन द सेम क्वेश्चन। what extent it is possible to save and increase the area of forests in Pakistan? Yes, ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। इट कैन क्रिएट ट्रबल टू यू। अगर आपको 6 मार्क्स का फॉर्मेट नहीं आता, अगर आपने टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट नहीं किए हुए, ये 6 मार्क का क्वेश्चन आपके लिए प्रॉब्लम बना देगा। अब इसके 2 पार्ट्स हैं बेटे। सबसे पहले तो मैं देखता हूँ कि मेरा से एक व्यू में वो क्या पूछ रहा है। ये वो पूछ रहा है व्हाट एक्सटेंड, यहाँ पर इज पॉसिबल टू सेव। पहले तो मैं ये बताऊंगा कि किस हद तक हम सेव कर सकते हैं। तो आप उसमें बताओगे कि अगर गवर्नमेंट जो है वो फॉरेस्ट रेंजर्स को अपॉइंट करे, अगर गवर्नमेंट जो है वो फाइन इम्पोज करे, अगर मॉनिटरिंग करे, पेट्रोलिंग करे जंगलों की, टिम्बर माफिया की एक्टिविटीज को कंट्रोल करे, तो वी कैन सेव द फॉरेस्ट कवर अराउंड अस। वन इंक्रीज में फिर आप बताओगे कि किस किस इलाके में कौन कौन सा ट्री ग्रो कर सकते हो और क्यों ग्रो हो सकता है वहां पे। ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा था कि ये क्वेश्चन आपको आ सकते हैं कि टू व्हाट एक्सटेंट पाकिस्तान कैन इंक्रीज द फॉरेस्ट। आप बताओगे कि रिवरन, हमारे पास 3180 किलोमीटर इंटस रिवर है, वहां पे हम रिवरन लगा दें। हमारे पास छोटे छोटे रिवर्स हैं, हब रिवर है, दश्त रिवर है, काबुल रिवर है, नीलम रिवर है, गिलगित रिवर है, स्वात रिवर है, स्वान रिवर है। उनमें अगर हम रिवरन फॉरेस्ट लगा दें साइड्स पे, तो हमारा एफॉरेस्टेशन काफ़ी हो सकती है। फिर आप बताओगे कि बलूचिस्तान के अंदर हम स्क्रब फॉरेस्ट लगा सकते हैं, थॉर्न फॉरेस्ट लगा सकते हैं, और हम मैंग्रोव 1000 किलोमीटर करीब हमारा कोस्टल रीजन है, तो पूरे उस कोस्टल रीजन पे हम जहाँ जहाँ स्वैम्प्स हैं वहां पर हम मैंग्रोव्स प्लांट कर दें, हम इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं। 6 marker question depends upon what you have learned in the previous parts of your chapter। हमेशा 6 मार्क्स क्वेश्चन जो होता है वो स्टूडेंट्स के लिए नाइटमेयर होता है, हर बैच के लिए। वो कहते हैं सर इसकी एग्जांपल्स नहीं मिलती हैं, कैसे आर्ग्यूमेंट्स को करें। बेटे सिंपल सी बात है, अगर आपने प्रीवियस अपने असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स किए हुए हैं तो उन्हीं की मदद से आपके 6 मार्कर क्वेश्चन होते हैं, वहीं से डाटा निकलता है और आप उनको जस्ट रीअरेंज करते हो और इन आंसर्स को प्लेस कर देते हो। लेट सपोज मैं और 6 मार्कर क्वेश्चंस देखता हूँ। State one use of timber from forest that have been cut down। तो स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग, फिर फर्नीचर, ये लिखा हुआ है सारा। बॉक्सेस बन सकते हैं, पेपर बन सकता है, स्पोर्ट्स गुड्स बन सकती हैं, ये सारा आंसर साथ ही गिवन है। उसके बाद बेटे यूजिंग द फोटोग्राफ एंड योर ओन नॉलेज डिस्क्राइब द इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन द नेचुरल इन्वायरमेंट। ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ, सॉइल इरोजन, लैंडस्लाइडिंग, ये सारे कॉमन चीज़ें हैं बेटे, इनको आप लिख देंगे। ये जो सॉइल वॉश्ड इनटू रिवर्स है, इनको कोस्टल इरोजन कहते हैं या कनाल इरोजन कहते हैं। तो ये आप सारी इन पॉइंट्स में लिख सकते हैं। अच्छा जी, एक और 6 मार्कर आ गया मेरे पास। व्हाट एक्शंस कैन बी टेकन टू रिड्यूस डिफॉरेस्टेशन। मैंने आपको क्लास में करवा दिया था, मैं आगे चलता हूँ।
क्यू बॉक्स क्वेश्चन मैं आपसे करता हूँ डिस्कस। क्यू बॉक्स आर ऑलवेज इंपॉर्टेंट। ये देख लीजिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। स्टेट द मेन डिफरेंस बिटवीन नेचुरल वेजिटेशन एंड प्लांटेशंस। अब नेचुरल वेजिटेशन का बताओगे कि दे आर नेचुरली फाउंड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज आर फाउंड इन ऑन अ सेम लोकेशन इन अ क्लस्टर्ड वे, not in an organized way, and plantations are always organized, and they have been provided with the water through a canal, through a irrigation system, or they are been uh, planted in a way that they are not going to disturb each other's food supplies. तो प्लांटेशंस, नेचुरल वेजिटेशन और इरिगेटेड प्लांटेशंस का मतलब पता होना चाहिए आपको। नेचुरल फॉरेस्ट क्या होते हैं? जो जंगल होते हैं। प्लांटेशंस क्या होती हैं? जो आपके घरों के साथ पार्क्स में लगे हुए हैं, आपकी रोड्स पे लगे हुए हैं, वो प्लांटेशंस होती हैं। ह्यूमन मेड जिसे कहते हैं फॉरेस्ट, दे आर कॉल्ड एज प्लांटेशंस। अब इसमें बेटे ये है, ये क्वेश्चन आपके लिए मैंने डिस्कस करना था, मैं इसको सेपरेटली भी डिस्कस कर लेता हूँ। ये क्वेश्चन इसमें 6 मार्कर में भी दिया हुआ है मैंने। इन 2000 मैं उसको खोल लेता हूँ ताकि आपको यहाँ से समझा दूँ 6 मार्कर्स में, क्योंकि आपने ये सॉल्व करना है एज योर होमवर्क। तो इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि वाई देर इज नीड। इन 2014 about 4.2% of the land area of Pakistan was covered in forests. Explain why more forests need to be planted in the Indus Plains. चलिए बेटे, एक्सप्लेन वाई है। दो रीजंस आपने मैक्सिमम एक्सप्लेन करनी है एग्जाम्पल के साथ। इंडस प्लेन्स में क्यों फॉरेस्ट इंक्रीज करना जरूरी है? सिंपल, बिकॉज ऑफ इट्स पॉपुलेशन। आप बताओगे कि 60% से भी अबव पॉपुलेशन पाकिस्तान की इंडस प्लेन्स में रहती है, और जब ज़्यादा पॉपुलेशन है, ज़्यादा इन्वायरमेंटल थ्रेट्स हैं, ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट होगी, ज़्यादा वहाँ की इन्वायरमेंट को प्रिजर्वेशन चाहिए। तो इसलिए वहाँ पर ज़्यादातर हमें प्लांटेशंस लगानी चाहिए, सो दैट इंडस प्लेन कुड बी given more green view and more appealing for the sustainable existence of us in this part of Pakistan. दूसरा बेटे, इंडस प्लेन्स में आप बताओगे कि मेजर इंडस्ट्रीज हैं पाकिस्तान की, जिनमें आपकी फर्नीचर मेकिंग इंडस्ट्री का हब है चनियोट नियर पंजाब। चनियोट आपने भी शायद सुना होगा, चनियोटी फर्नीचर इज वेरी फेमस, ठीक है, पूरी दुनिया में जाता है चनियोटी फर्नीचर। चनियोट एक साउथ, ये आपके साउथ तो नहीं कह सकते उसको, पंजाब का हिस्सा है। ऑलमोस्ट ये 3 से 4 घंटे की ड्राइव है लाहौर से चनियोट शहर। न्योट जो है बेटे, दैट इज दी फेमस सिटी ऑफ पाकिस्तान विच प्रोड्यूसेस द हैंडमेड फर्नीचर। और चनियोटी फर्नीचर की जो प्राइस है, दैट इज मच हायर देन द वेस्टर्न फर्नीचर और द मॉडर्न स्टाइल ऑफ फर्नीचर वी हैव। तो चनियोट में आप बताओगे कि हमारी फर्नीचर इंडस्ट्री का हब है इन पंजाब, तो हमें उसको प्रोवाइड करना है, फर्नीचर के लिए टिम्बर प्रोवाइड करना है। फिर सियालकोट, आप अभी खुद भी जानते हो कि फीफा वर्ल्ड कप में भी सियालकोट हमारा जो है वो फेमस हुआ बिकॉज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फुटबॉल, जिसका कल फाइनल भी देखना है। तो फर्नीचर मेकिंग जो है, उसके साथ साथ स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी पंजाब में लोकेटेड है, सियालकोट शहर के अंदर। तो उसको भी रॉ मटेरियल चाहिए हॉकीज बनाने के लिए, क्रिकेट बैट्स बनाने के लिए, रैकेट्स बनाने के लिए, टेबल टेनिस टेबल्स बनाने के लिए, स्नूकर जो खेलते हैं स्पोर्ट्स है, ये जो स्नूकर टेबल्स होते हैं लकड़ी के बने होते हैं, उनकी स्टिक्स लकड़ी की बनी होती हैं। तो ये जितने भी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स हैं, रैकेट्स हैं, बैडमिंटन का सामान है, क्रिकेट का सामान है, हॉकी का सामान है, आइस हॉकी इवन पाकिस्तान में नहीं खेलते लेकिन हम पाकिस्तान से बना के भेजते हैं, बेसबॉल है, ये सारा कुछ जो है इसमें क्रिकेट से लेकर बेसबॉल तक रॉ मटेरियल लकड़ी है। तो लकड़ी जो है दैट इज बिन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम फॉरेस्ट। तो आप ये बताओगे कि यहाँ की जो इंडस्ट्री है उसको रॉ मटेरियल चीप प्रोवाइड करने के लिए इंडस प्लेन्स में एफॉरेस्टेशन जरूरी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें दे आर क्वाइट लाइक आइडेंटिकल, अगर आपने की हुई हैं तो आप इजीली इनको आंसर कर सकते हो। लेट्स सी सम अदर क्वेश्चंस। वंस अगेन अ मैप इज बीन गिवन एंड द मैप इज आस्किंग यू टू आइडेंटिफाई द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रीज ऑन दिस मैप। आई हैव टोल्ड यू कि ये क्वेश्चन बार बार आता है। वो कह रहा है एक्सप्लेन द यूजेस और पर्पस ऑफ ट्रीज दैट ग्रो देयर। अगर आप फॉरेस्ट टाइप नेम मैंग्रोव लिख दोगे, मैंग्रोव के लिए ऊपर लिखना आसान होता है, मैंग्रोव लिख दो, उसकी डिस्क्रिप्शन लिख दो, दैट इज व्हाट इज गोइंग टू लेट यू हैव ऑलमोस्ट 4 मार्क्स, ठीक है। तो इसमें भी देखो मैंग्रोव को यूज किया हुआ है, ठीक है। ब्रॉड लीव्स हैं, टिप्स हैं, लेदरी पॉइंटेड उसके लीव्स होते हैं, 3 to 8 मीटर्स हाइट होती है। ये सारी चीजें मैंने आपको लिखवाई थी, ये सारी चीजें आप इसमें लिखोगे तो दे विल बी लेटिंग यू हैव द बेटर थिंग्स। समर्स, मई जून सेशन के अंदर
2017 में देयर वाज नो क्वेश्चन, विंटर्स 2017 में देयर वाज अ क्वेश्चन। ये चैप्टर जो है ना बेटे 12 से 13 दफा आ चुका हुआ है, अभी रिसेंटली 2025 में आया था। और उसमें इवन बहुत से मेरे स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन गलत भी कर दिया था, जस्ट बिकॉज ऑफ अ सिंगल मिसकंसेप्शन। वो मैं क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ, वो क्वेश्चन आपने भी याद रखना है कि इस क्वेश्चन को थोड़ा डिफरेंटली आंसर करते हैं। वो मेरा एक बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट था जिसपे मुझे बड़ी उम्मीदें थी, और उसने अच्छा स्कोर किया, बट अनफॉर्चुनेटली उसका ये आंसर गलत हो गया। ये है क्वेश्चन, क्वेश्चन था फॉरेस्ट पे। और क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ बेटे, और आपको समझा भी देता हूँ कि अगर ये क्वेश्चन आपको आए तो आपने इसको कैसे आंसर करना है। एक्सप्लेन टू रीजंस फॉर एफॉरेस्टेशन इन पाकिस्तान। अब ये बड़ा सिंपल सा, वो कह रहा है कि पाकिस्तान में एफॉरेस्टेशन क्यों करनी चाहिए। तो आपने बताना है कि एफॉरेस्टेशन इसलिए करनी चाहिए कि हमारे पास AQI का प्रॉब्लम है, एयर पोल्यूशन का प्रॉब्लम है, स्मोक का प्रॉब्लम है नवंबर अक्टूबर में। तो स्मोक को फाइट बैक करने के लिए एफॉरेस्टेशन करनी चाहिए। उसके बाद आप बताओगे कि ये आपकी वाइल्ड लाइफ पाकिस्तान में यूनिक है, मारखोर्स हैं, फिर आपके पास स्नो लेपर्ड्स हैं, आपके पास डिफरेंट किस्म के डियर्स हैं जो बड़े एक्सपेंसिव हैं, उनकी डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, बर्ड्स हैं जिनकी बड़ी स्पीशीज़ हैं आपके पास। उनकी प्रिजर्वेशन के लिए फॉरेस्ट लगाना ज़रूरी है, एफॉरेस्टेशन को करना ज़रूरी है। तो ये बड़ा सिंपल सा आंसर है अगर आप कोई चीज़ें पता है। फिर ये मैंने आपसे क्वेश्चन क्लास में भी डिस्कस किया है। डिस्क्राइब द फिजिकल फैक्टर्स, सॉइल, टेम्परेचर, रेनफॉल। सिंपली आप इन तीनों फैक्टर्स को एक्सप्लेन करोगे, एंड दैट इज इट टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्यू बॉक्स क्वेश्चन। evaluate whether development in transport network benefits। ये तो बेटे चैप्टर उसका है 11 का है, इसमें आ गया हुआ है। ये फिर क्वेश्चन वही है, मैप आइडेंटिफिकेशन है। मैप से देखोगे, नेम टू एरियाज वेयर मैंग्रोव्स आर ग्रोन, सिंध कोस्ट, मकरान कोस्ट, आउट ऑफ टू विल बी गिवन टू यू। डिस्क्राइब टू नेचुरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट। यहाँ पे भी सॉल्टी वाटर है, 3 to 8 मीटर्स हाइट है, लो डेंसिटी ऑफ लीव स्ट्रक्चर है, लेंथी ब्रांचेस हैं, बिग लीव्स, ब्रॉड लीव्स हैं, कोई भी आप लिख सकते हो, दैट वुड बी राइट टू बी मार्क्ड बाय योर एग्जामिनर। सजेस्ट 3 फिजिकल फैक्टर्स विच डिटरमाइन द टाइप ऑफ डेंसिटी। ये भी सेम वही क्वेश्चन है। उसके बाद यस, कॉनिफ्यूरियस के बारे में आपसे पूछा गया कि कॉनिफ्यूरियस की कनोपी होती है, कॉनिकल शेप होती है, स्नो रेजिस्टेंस के लिए स्प्रिंगी लीव्स होते हैं, लेदरी लीफ स्ट्रक्चर होता है। ये सारी चीज़ें आप बताओगे। अपवर्ड्स ब्रांचेस होती हैं ताकि वो मोर सनलाइट को ग्रैस्प कर सकें। तो ये सारी चीज़ें इस क्वेश्चन के अंदर भी आएंगी। ये पॉपुलर क्वेश्चंस हैं और ऑलमोस्ट आ चुके हुए हैं। अब ये क्वेश्चन है जिस पे मैं वाइंड अप करूंगा आज का सेशन। आपके क्वेश्चन आंसर्स को एड्रेस करूंगा इफ़ देर आर गोइंग टू बी एनी आफ्टर दिस, लेकिन होने नहीं चाहिए क्योंकि बहुत सिंपल सा चैप्टर है। अगर होंगे तो आई विल रियली अप्रिशिएट इट कि मैं उनको आंसर करूं, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग में कोई भी एरर या कोई भी प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े आपको। यहाँ पे बेटे क्यू बॉक्स का मैं आपको फॉर्मेट समझा दूं। क्यू बॉक्स क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए, ए व्यू ए एंड व्यू बी, दो व्यूज हैं क्यू बॉक्स के अंदर। increased forest covers is an important use of land for the future development of Pakistan। तो फॉरेस्ट कवर से क्या होगा, सिंपल सा आप बता दोगे कि एज पाकिस्तान इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉपुलेशन, सो इफ वी आर गोइंग टू plant more trees, more environmental conservation is going to be possible in future, because holding and assisting a 7th largest nation will need environmental steps to be taken by the government even as well. And trees are going to fight your smoke, air pollution, respiratory issues of the people. They will let your global warming to be reduced। तो यहाँ पर इसलिए भी ज़्यादा ट्रीज को प्लांट करना है हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। दूसरी चीज़ ये है कि आपके लिए इंक्रीज फॉरेस्ट कवर इज एन इम्पॉर्टेंट यूज ऑफ लैंड। इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल को आप लिखोगे कि यहाँ से मिल सकता है, ये भी आप लिख सकते हो। दूसरा पॉइंट व्यू है कि देर आर मोर इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ लैंड फॉर द फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान देन इंक्रीजिंग फॉरेस्ट कवर। तो और क्या हम यूज कर सकते हैं फॉरेस्ट के अलावा जमीन को, अब वो मेंशन करोगे कि एग्रीकल्चर कर सकते हैं टू फीड ह्यूज मास ऑफ ऑलमोस्ट 32 करोड़। ठीक है, 32 करोड़ के करीब पाकिस्तान की पॉपुलेशन है, वेयर एज श्रीलंका इज ओनली हैविंग 2 करोड़ लोग, न्यूजीलैंड इज हैविंग 80 लाख टू 1 करोड़, और आइसलैंड इज हैविंग ऑलमोस्ट 50 to 60 लाख पीपल लिविंग देयर। तो हम 32 करोड़ लोगों का मुल्क है। तो हम उसके लिए फूड सप्लाईज करने के लिए हम यहाँ पर फार्मिंग कर सकते हैं, क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं, फ्रूट्स ग्रो कर सकते हैं, हम ये यूज़ कर सकते हैं जो फॉरेस्ट से ज़्यादा ज़रूरी है
मेरे ख्याल में फूड सप्लाई करना या फीड करना उन लोगों को जो यहाँ पर हमारे साथ रहते हैं। दूसरा, इसका क्या इंपॉर्टेंट यूज ऑफ लैंड हो सकता है कि माइनिंग कर सकते हो बलूचिस्तान के अंदर, आप डिफरेंट मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो और वो मिनरल्स आप डिफरेंट इंडस्ट्रीज में एक्सपोर्ट मार्केट्स में बेचकर रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। लेकिन कंक्लूजन में क्या करोगे आप जिस व्यू से ज़्यादा एग्री करते हो उसको सपोर्ट करोगे। आप अगर कहते हो कि फॉरेस्ट कवर ज़्यादा ज़रूरी है तो फिर आप कंक्लूजन फॉरेस्ट कवर के ऊपर ज़्यादा लिखोगे, दोनों व्यूज़ को एड्रेस करोगे। पहले व्यू ए पे लिखोगे, फिर व्यू बी, इसका जो है ना वो व्यू बी पे लिखोगे, और जो कंक्लूजन दोगे वो आप किसी एक व्यू को सपोर्ट कर दोगे। जैसे मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करूँगा, इस क्यू बॉक्स के अंदर अब मेरे पास वो कोलैबोरेशन पेन अनफॉर्चुनेटली अभी नहीं है, मैं नेक्स्ट लेसन में लेके आऊँगा, टच को सारा यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट यूज़ ऑफ लैंड, इम्पॉर्ट मोर अदर इंपॉर्टेंट यूज़ ऑफ लैंड ना, तो इसमें पहले मैं इसको आइडेंटिफाई करूँगा कि मैं ज़मीन को और किस किस काम के लिए यूज़ कर सकता हूँ। व्यू ए में देखूंगा इंक्रीज फॉरेस्ट कवर इज एन इंपॉर्टेंट यूज ऑफ लैंड, तो पहले मैं इसके बेनिफिट्स बताऊंगा फॉरेस्ट कवर इंक्रीज करने के। मैं बताऊंगा अदर यूजेस क्या हो सकते हैं जो हम लैंड को यूज कर सकते हैं जिस कामों के लिए, और कंक्लूजन में लिखूंगा उसके ऊपर जिसको मैं ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ। डेफिनेटली फॉरेस्ट कवर पे जाऊंगा, फॉरेस्ट कवर के बेनिफिट्स लिख दूंगा। अगर मैं लैंड के ऊपर जाऊंगा तो मैं लैंड के बेनिफिट्स लिख दूंगा, लेकिन दोनों व्यूज को मेंशन करना जरूरी है। और ये देखें, विच व्यू डू यू एग्री विद मोर, तो आपने फिर कंक्लूजन में जिसको आप ज्यादा सपोर्ट करते हैं उस पर कंक्लूजन लिखना है। गिव रीजंस टू सपोर्ट योर आंसर एंड रेफर टू एग्जांपल्स यू हैव स्टडीड, तो आपने एग्जांपल्स भी जरूर मेंशन करनी है कि किस किस तरह से वो यूज हो सकता है, किस किस इंडस्ट्री में यूज होता है, वो एग्जांपल्स होंगी। यू शुड कंसिडर व्यू ए एंड व्यू बी इन योर आंसर, लिखना दोनों पे है, व्यू ए पे भी लिखना है, व्यू बी पे भी लिखना है। अगर आप व्यू ए मिस कर दोगे 3 नंबर आएंगे, अगर आप व्यू बी मिस कर दोगे डेफिनेटली 3 नंबर आएंगे, दोनों पे लिखोगे 4 नंबर आएंगे, एग्जाम्पल्स दोगे 5 आ जाएंगे, कंक्लूजन लिखोगे 6 में से 6 नंबर आ जाएंगे। लेकिन वैलिड होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स होने चाहिए, रेलिवेंट एग्जाम्पल्स होने चाहिए, दिस इज द वे फॉरवर्ड। ठीक है, तो ये एक छोटा सा बेटा इसके ऊपर है, और इसमें लाइक मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी चीज होगी जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी अगर आपने असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स किए हुए हैं। तो अगर नहीं किए हुए तो फिर डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स ही देखो कंप्लीमेंट कर रहे हैं इस पूरे चैप्टर को। असेसमेंट ऑब्जेक्टिव लिस्ट मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में भेज रहा हूँ क्लास के बाद पीडीएफ फॉर्म में, वो आप सब रिसीव कर लें। काइंडली असेसमेंट ऑब्जेक्टिव से शुरू किया करें कोई भी चैप्टर, और फिर उनको कवर करके टॉपिकल्स की तरफ जाया करें। बुक्स, नोट्स आपको हेल्प करेंगे जब आपको असेसमेंट ऑब्जेक्टिव पता होंगे। अदरवाइज नोट्स आपको डाइवर्ट करेंगे, एक्स्ट्रा नॉलेज या इररेलेवेंट नॉलेज की तरफ लेके जाएंगे, क्योंकि उनमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स में शायद कंप्लीमेंट नहीं हो रही होती हैं। तो असेसमेंट ऑब्जेक्टिव को शुरू करें, उसके अकॉर्डिंगली नोट्स पढ़ें, उसके अकॉर्डिंगली बुक पढ़ें, उसके अकॉर्डिंगली ही आप अपने टॉपिकल्स करें। दैट इज़ द वे फॉरवर्ड। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो मैं आपको इस क्लास के बाद व्हाट्सएप ग्रुप्स में ज्योग्राफी की असेसमेंट ऑब्जेक्टिव लिस्ट भेज रहा हूँ। 2 चैप्टर हमने कर लिए हैं, 2 मैंने अभी आपको और करवाने हैं इस महीने के अंदर। इस वीक में मैं मिनरल्स इन पाकिस्तान करवाऊंगा, फिर फिशिंग इन पाकिस्तान करवाऊंगा। 4 चैप्टर हमने इस मंथ में करने हैं, 4 अगस्त में करवाऊंगा, 4 सितंबर में योर सिलेबस इज गोइंग टू बी डन। तो इसमें आप जो है वो इंस्ट्रक्शंस को फोकस करें। बहुत इजी चैप्टर है, स्लाइड्स चाहिए मैं स्लाइड्स भेज देता हूँ, बल्कि मैं भेज देता हूँ आपको, हेल्प आउट हो जाएगी नोट्स के कॉन्टेक्स्ट में। ये स्लाइड्स मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में अभी क्लास के बाद भेज रहा हूँ, ताकि आप ये भी फॉलो कर सकें जब भी आपको ज़रूरत हो। तो अगर कोई क्वेश्चन है बेटे तो आप मुझसे पूछिए, टाइप कीजिए, आई विल आंसर इट। अगर कोई और आपके पास क्लैरिटी नहीं है वो उसके बारे में डिस्कस करें। हम हर सैटरडे को जो भी टॉपिक करेंगे, नेक्स्ट वीक माइनिंग का हमने करना है, तो थर्सडे और वेनसडे माइनिंग करवाऊंगा और सैटरडे उसका टॉपिकल करवाऊंगा। जी बेटे मैं कर देता हूँ। शाहराम, मैं आपके बेटे क्लास के बाद दोनों सब्जेक्ट्स की असेसमेंट ऑब्जेक्टिव लिस्ट्स जो हैं वो भेज देता हूँ। ज्योग्राफी की भी और हिस्ट्री की सेक्शन वाइज है। सेक्शन 1 की मैंने आपको प्रिंटेड दी थी, सेक्शन 2 की भी प्रिंटेड मिलेगी। सेक्शन 2 हमने अगस्त में करना है, सेक्शन 3 सितंबर में करना है। सेक्शन 1 और सेक्शन 2 अक्टूबर नवंबर वाले अच्छा करके जाएं, क्योंकि अक्टूबर नवंबर में सेक्शन 1 सेक्शन 2 आ रहा है मोस्टली। ठीक है, पहले 10 चैप्टर हिस्ट्री के कर लें, आपका 75 पेपर मार्क का अच्छा हो जाएगा। सेक्शन 3 क्योंकि अभी रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा आया है, तो सेक्शन 1 सेक्शन 2 अक्टूबर नवंबर के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। और सेक्शन 2 बहुत ईजी है, पाकिस्तान मूवमेंट है, वो मैं आपको इंशाल्लाह महीने में बड़ी अच्छे तरीके से करवा दूंगा। अभी आप फोकस करें बेसिक्स के ऊपर, स्किल्स के ऊपर, और स्किल्स के साथ साथ थोड़ा थोड़ा कंटेंट रिव्यू करते जाएं।
May June tak you will be expert of inshallah this subject, because we will be having the knowledge of skills, and we'll be having the knowledge of literature even as well. तो टिल देन बेटे अपना ख्याल रखें. अभी जैसे ही क्लास खत्म होती है, आई एम सेंडिंग यू द असेसमेंट ऑब्जेक्टिव लिस्ट ऑफ ज्योग्राफी, और टॉपिक वाइज मैं टॉपिकल्स आपसे शेयर करता जाऊंगा. जिसका भी हम लेसन लेंगे उसका टॉपिकल मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा. टॉपिकल सॉल्व करें, असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स को फॉलो करें, की वर्ड्स कमांड वर्ड्स को याद रखें, एग्जाम्पल्स याद करें, and the things are going to be always wonderful in Pakistan studies for you. So with this hope, enjoy your weekend. Inshallah, we'll see each other on Monday. Physical lessons. Till then, take care of yourself, and Allah Hafiz bete. All right, there is a question. Allah Hafiz bete. Allah Hafiz Fatma. Allah Hafiz.